केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 समिट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको। From Jaipur, a clarion call has gone out to the world that we'll have to strengthen the ability of our MSMEs, who play a very, very important role in India's economy and the economy of many parts of the world, particularly less developed countries and the developing nations. And a call has gone out across the world. We call it the Jaipur Call for Action for enhancing MSMEs' access to information. We all recognize that MSMEs have limited ability, given their small size, to have full access to information, finance, market-sensitive data points, and therefore, whilst they can contribute much more to economies, they remain constrained in their ability. In the Jaipur Call for Action, we have recognized this challenge. We have worked on support to scale up existing databases and portals that will provide trade-related information to MSMEs. We have agreed to strengthen the Global Trade Help Desk, which is implemented by the ITC, UNCTAD and WTO, and continuously upgrade it so that it becomes more inclusive and provides very rich data for our MSMEs. And all the member countries and invitee countries and institutions have welcomed this action plan to strengthen information flow for our MSMEs. And this, I think, will be a very, very powerful new message that's going out to the world from Jaipur. The third annexure, friends, relates to high-level principles on digitalization of trade documents. With the growing importance of digital economy, with the growing engagement with digitalization that businesses around the world are benefiting from, in this fast-paced world, the traditional and age-old ways of working through paper documents, paper trail, all of the impediments to seamless flow of goods and services have been studied by teams across countries, and certain high-level principles have been drawn up and agreed to by all the countries, which in the current global trade environment will reduce our reliance on paper-based documentation, which is also environment-friendly, this decision, and will help change the traditional ways of working of businesses, reduce the time-consuming, labor-intensive and error-prone way of working, and make digitalization of trade documents the process to facilitate international trade. Several principles have been finalized in consultation unanimously. Principles are as follows. We have 10 principles. Neutrality. Principle number 1 is neutrality. Principle 2 is security. Principle 3 is trust. Principle 4 is interoperability. Principle 5 is data privacy. Principle 6 is reliability. Principle 7 is voluntary sharing of data. Principle 8 highlights collaboration. Principle 9 focuses on traceability. And Principle 10 talks about scalability. So it's a very, very powerful set of principles which I believe will revolutionize international trade in the future. Truly a wonderful experience having the presidency of the G20, a very, very satisfying outcome-oriented G20 ministerial. And as we rejoice the successful landing in the south surface, the south lunar surface
of Chandrayaan-3 yesterday, as we enjoyed and celebrated the success of our young chess master, the youngest ever world champion. I think the successful adoption of the outcome document and chair's summary, which has been accepted by all G20 countries and invitee countries and international organization and regional organizations who all worked collectively in the spirit of cooperation, collaboration, friendship and oneness. Such significant deliverables and outcomes at the G20 Trade and Investment Ministers Ministerial and the work done in the Trade and Investment Working Group is truly very, very redeeming. Through you, I would like to thank all the member countries, all the invitee countries, international, regional and Indian organizations, and all our officials led by Commerce Secretary Mr. Sunil Barthwal, led by our Chief Negotiator Mr. Krishan Kumar, our other colleagues, all have worked relentlessly to make Mr. Rajesh Agarwal Additional Secretary. All have worked. पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों का एक और खुलासा हुआ है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने उन डिप्लोमेट का अप्रेजल किया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। न्यूज 18 ने न्यूयॉर्क स्थित एक पाकिस्तानी राजनयिक की गोपनीय सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी हासिल की, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने वाणिज्य दूतावास में कश्मीर यौम इज्तिमात और कश्मीर काला दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया था। बता दें कि इससे पहले न्यूज 18 ने बताया था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मौके पर भी पाकिस्तान के दुनिया भर में दूतावास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां दुनिया भर के राजनयिक कर्मचारियों का अप्रेजल और प्रमोशन उनके कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, वहीं पाकिस्तान अपने राजनयिक कर्मचारियों का मूल्यांकन भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के आधार पर करता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और हो सकता है कि इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा हो। पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का इस बार यूरोप में खुलासा हुआ है। दरअसल ग्रीस अथॉरिटी ने पाकिस्तान की उस साजिश को फेल कर दिया जिसके तहत पाकिस्तान ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत विरोधी प्रदर्शन की योजना बनाई थी। पीएम मोदी का ग्रीस में न केवल जोरदार स्वागत हुआ, वहीं ग्रीस सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के प्रदर्शन के सीक्रेट प्लान को भी फेल कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चीन सीमा विवाद में सच छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कारगिल में एक रैली में कहा कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है, जबकि पीएम मोदी ने विपक्ष के साथ हुई बैठक में बताया कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। ऐसे में सरकार को जनता को सच बताना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के दौरे पर रंधावा डोटासरा ने गौरव गोगोई के साथ बैठक की। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को लेकर यह बैठक हुई। ब्लॉक और जिले लेवल की सर्वे रिपोर्ट पर यह मंथन हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता लखवीर जुड़ गए। लखवीर, ब्लॉक और जिले लेवल की सर्वे रिपोर्ट पर यह मंथन जो है वो किया गया, क्या कुछ रहा इस बैठक में खास?
बिल्कुल आसिफ, आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में हैं। दिल्ली आते ही उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ बैठक की है। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। ब्लॉक और जिले लेवल की सर्वे रिपोर्ट पर मंथन हुआ है, क्योंकि कल कांग्रेस के वॉर रूम में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया था और उसमें तमाम सह प्रभारी मौजूद थे, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मौजूद थे और स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य मौजूद थे। उस बैठक में तय हुआ कि 28 अगस्त को तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं वो जयपुर जाएंगे। उसके बाद तमाम दावेदारों के जो बायोडाटा है वो लिए जाएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जयपुर में होगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी की जो पहली सूची है उसको लेकर अब कवायद तेज हो गई है और जल्द ही पहली सूची जारी हो सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक पहली सूची जारी हो सकती है। उसको लेकर कवायद लगातार जारी है। तमाम तरीके की बैठकें हो रही हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस वॉर रूम में हुई, तो वहीं आज एक महत्वपूर्ण बैठक निजी स्थान पर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा की हुई है, जिसमें तमाम तरीके की ब्लॉक और जिला लेवल की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस पर मंथन हुई है। तमाम क्षेत्रों पर कहा जा सकता है कि उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन हो रहा है। मतलब साफ है कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है आसिफ कि पहली सूची कांग्रेस की जल्द आ सकती है और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी हो रही है। जी लखवीर, जानकारी के लिए धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कांस्टेबल प्रहलाद की मौत के बाद परिजनों में गुस्सा है। परिजनों का शव उठाने से इनकार। परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग की है। मुआवजा राशि और आर्थिक मदद का आश्वासन लिखित में देने की मांग की है। पुलिस अधिकारी समझाइश करने में जुटे हुए। तो ये खबर आ रही है एसएमएस हॉस्पिटल से। एक कांस्टेबल प्रहलाद की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। चोरों का पीछा करते हुए चोरों ने गोली चलाई और इसमें प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। अब परिवार के लोग हॉस्पिटल से शव लेने से इनकार कर रहे हैं। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने धरना देना शुरू कर दिया है। पुलिस के अधिकारी उनके साथ समझाइश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा राशि मिले और साथ ही साथ कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिया जाए। तो ये खबर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से, जहां पर कांस्टेबल के परिवार वाले, प्रहलाद के परिवार वाले, उनके परिजन इस समय धरने पर बैठे हैं। ये तस्वीरें, परिजन चाहते हैं कि कांस्टेबल को शहीद का दर्जा मिले, साथ ही साथ आर्थिक सहायता मुआवजा राशि भी चाहते हैं। और महेश हमारे साथ जुड़ गए। महेश के पास सीधा रुख करते हैं। वो इस समय एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर है। महेश, परिवार की कौन सी मांग जो है वो डिपार्टमेंट को नाजायज लगती है? क्योंकि देखा जाए तो जो कांस्टेबल है वो चोरों के साथ मुठभेड़ के अंदर मारा गया है। मुठभेड़ में उसे गोली लगी है, चोरों का पीछा करते हुए गोली लगी है। दूसरा, मुआवजा या आर्थिक सहायता, इसमें जो है वो किस बात पर जो है वो डिपार्टमेंट को लगता है कि ये मांगे नाजायज हैं? और क्या कहना है पुलिस डिपार्टमेंट का और क्या कहना उनके परिवार वालों का? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस विभाग की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया अभी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जो परिवारजन है वो इस समय में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। राजपूत सभा जो है उसके जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो आपस में एक चर्चा करके मांगों को जो है अभी लिखित में एक जो मांगों का पत्र है, मांग पत्र है, उसको जो है दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी, क्यूआरटी के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही में उनके परिवारजन जो हैं वो देखिए आप मोर्चरी के बाहर ही धरने पर जो है वो बैठ गए हैं। जो गमजदा परिजन हैं उन्होंने अभी यही मांग अपनी रखी हुई है। उनके जो भाई हैं उनसे बात करने की कोशिश हमारी वो यही है और उनके भाई से हमारी जो है थोड़ी देर पहले बात हुई थी
और जो राजपूत सभा के जो अध्यक्ष हैं राम सिंह, उन्होंने जो है बातचीत यहाँ पर की है और किस तरह की बातचीत उनकी रही है और क्या जो मांग है उन्होंने रखी है। राम सिंह जी, मैं आपसे एक बार बात करना चाहूंगा। सर, क्या आप लोग ने मांग रखी है समाज की तरफ से और अपने परिवार की? देखिए, जो उनकी वीरता शौर्य है उसमें शहीद का दर्जा मिलना है। शहीद का जो पैकेज है वो पूरा पैकेज मिलेगा और अगर कोई किसी तरीके की गड़बड़ी होगी तो हम दिला के छोड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री तक जाना हो हम वहां भी जाएंगे। और इनके जो इन्होंने बदमाशों का पीछा किया है, बदमाशों को पकड़ा, राजस्थान पुलिस का नाम किया, हमारे समाज का नाम किया है, उनके लिए जितना हो सके उतना हम करेंगे और उनको दिला के छोड़ेंगे। उनके जो शौर्य, पुलिस विभाग ने तो ऐसा कोई इनकार भी कहाँ किया? अभी कोई बातचीत आपकी? अभी हमारी बातचीत हुई है। अभी आईजी साहब ने कहा जो भी सिस्टम है पुलिस डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो भी आत्मीयता से चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक मतलब बहुत ही शौर्यवान व्यक्ति गया है, तो उसके लिए वो आत्मा से कहते हैं कि मैं जितना होगा उतना करूंगा। और उसके अलावा भी अगर उनके अधिकार से इतना नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे और वो लेके छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पर जो समाज के प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके भाई और जो बाकी परिजन हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। रणजीत सिंह जी, आखिर कौन सी मांग जो है वो उसको आप उठा रहे हैं यहाँ पर? जी, शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो लिखित में हमारे को यहाँ से चाहिए। जब लिखित में मिलेगा तो इसके लिए भी हमारे को गुहार लगानी पड़ रही है, धरना देना पड़ रहा है, नारेबाजी करनी पड़ रही है। बड़े शर्म की बात है, पुलिस का जांबाज सिपाही जो पुलिस तक आपको कोई लिए कहा नहीं गया? नहीं, आज तो खाली आश्वासन दे रहे हैं, गोलमोल घुमा रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम आपके साथ हैं। ऐसा अगर ऐसा सिस्टम अपना लिया कोई बात नहीं हो पाई है पुलिस के अधिकारियों से? नहीं, पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है आईजी साहब से, उन्होंने मतलब मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, लेकिन हम सब लोग ये चाह रहे हैं कि मौखिक की बजाय लिखित में हमें आश्वस्त करें कि जो शहीद प्रहलाद सिंह जी है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और परिवार का जो सदस्य है उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनके जो बालक और बालिका है उनको हायर एजुकेशन तक समुचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और जो उनके वृद्ध माँ बाप जो उन्हीं पे आश्रित थे, पूरा परिवार उन्हीं पे आश्रित था, उनको जो भी सहायता मिले वो सहायता मिले और गैलेंट्री अवार्ड उनको मिलना चाहिए। और जो दोषी है जिनको मुठभेड़ के अंदर इनको जो लगी है गोली, उन दोषियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। उन दोषियों को पकड़ के उसकी फांसी होनी चाहिए, आरोपियों जितने भी। बिल्कुल, बड़ा ये जानना भी जरूरी होगा महेश कि इस पूरे मामले पर पुलिस डिपार्टमेंट की क्या प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है और कौन कौन सी मांगे जो है वो डिपार्टमेंट मानता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए महेश आपका धन्यवाद। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के बाद ग्रीस पहुंचे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एथेंस में ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया गया। 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के विशेष न्योते पर पीएम मोदी वहां पहुंचे। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरापेट्रिटिस ने एथेंस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पहुंचे और उन्हें वहां पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद का पहला वीडियो भेजा है। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर चांद का ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में चांद दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे चांद पर उतर रहा है। इसरो ने ट्विटर पर लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन की सारी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं और सारे सिस्टम शेड्यूल पर हैं और नॉर्मल हैं। इसरो ने लिखा, लैंडर मॉड्यूल पेलोड आज स्टार्ट हो चुका है। रोवर गतिशीलता संचालन शुरू हो गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर शेप पेलोड रविवार को संचालन किया गया था। तो ये तस्वीरें आई हैं चंद्रयान 3 की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। यानी अब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर विचरण करने लगा है और इसरो ने अपने एक्स हैंडल से कहा है कि जैसा तय किया गया था, जो शेड्यूल तय किया गया था, जो डाटाज इसमें डाले गए थे, ठीक वैसा ही ये
काम कर रहा है। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुनवाई। रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी है। गोरखपुर जेल में अमरमणि त्रिपाठी बंद है। अमरमणि त्रिपाठी की आज रिहाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। दिल्ली से खबर है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी हैं। आज इनकी रिहाई होनी थी। गोरखपुर जेल में अमरमणि त्रिपाठी बंद। हालांकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। और ये खबर कुल्लू से, यहां बंजार की तीर्थन घाटी में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों में आवाजाही बंद हो गई। खुंदन से बटाहट सड़क पर पहाड़ी दरकने से यातायात बंद है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क बहाली की मांग की। कुल्लू मंडी के दोनों संपर्क मार्ग 3 दिनों से बंद हैं। ऐसे में एसेंशियल सर्विस बंद होने से कई वस्तुओं की किल्लत हो गई। दूध, दही, ब्रेड, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीमेंट, सरिया की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। बाजौरा में 3 दिन से सेब सब्जियों से लदे सैकड़ों मालवाहक वाहन फंसे हैं। कई मालवाहक वाहनों में सब्जियां सड़ने लगी है। सैकड़ों वाहन चालक सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर मोबाइल सिग्नल भी बार बार बाधित होने से लोग परेशान हैं। हिमाचल में आपदा का दौर जारी है। इस दौरान 2300 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। प्रदेश को 8450 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकार हर संभावित मदद में जुटी है, लेकिन इतने बड़े नुकसान की भरपाई करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कर्ज में डूबा प्रदेश केंद्र से विशेष मदद का इंतजार कर रहा है। ज्वाली की उप तहसील कोटला के न्यांगल गांव में पहाड़ी धंसने से 15 से 20 घरों का नामो निशान मिट गया। गांव के 25 से 30 घर इस लैंडस्लाइड की जद में आ गए। ऐसे में प्रशासन ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। मगर क्या स्थिति सामान्य हो जाने के बाद घर गांव से बेघर हुए लोग दोबारा अपने पैतृक गांव लौट पाएंगे? इसको लेकर कांगड़ा से हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। अभी आपको घिरे हुए पेड़ और गीली मिट्टी और एक लंबा चौड़ा पहाड़ आपको दिख रहा होगा, लेकिन कल तक यहाँ पर एक भरा पूरा गांव था, खेत खलियान थे, लोग खुशहाली से यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज आप देखिए तो गांव था उसमें इस पूरी पेरीफेरी में जो यहाँ नजर आ रहा है, मेरे कैमरे की मार्फत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, वो जो नजर आ रहा है वहां पर कम से कम 20 से 22 ऐसे घर थे जो कल तक पूरी तरह से सीना तान के खड़े थे, लेकिन आज वो घर कहीं आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब लोग यहाँ पर कोई नहीं है, सब के सब जो है सरकारी संस्थानों में टेंट के अंदर जो है वो गुजर बसर करने को मजबूर है। लेकिन अगर हम लोग अभी भी सजग नहीं हुए तो निकट भविष्य में इस तरह की और भी तस्वीरें जो देखने को मिल सकती है। आप यहीं के रहने वाले क्या? किस तरह का हालात है अभी यहाँ पर? कहाँ गए सारे के सारे लोग, कहाँ पर रह रहे हैं? भाई फिलहाल तो उनको स्कूल में शिफ्ट किया है और बाकी तो वहाँ दे रहे हैं, लंगर चला है। बाकी आगे देखते हैं। हमारी यही है शासन से, चलो उनको थोड़ी जमीन दिया जाए कि थोड़ा बहुत अपना घर बना ले। और छोटे छोटे बच्चे हैं, सियाने बुजुर्ग हैं। और मेरे को एक दुख की इस चीज़ की बात है, ये तो पहले जब 2013 में गया था, इन्होंने बोला कि 72 घंटे पहले पता लग जाएगा जो मशीनें लगी है, जो नीचे प्लेटें हैं बोलते हैं। हम तो चलो अनपढ़ है, हमारे को इतना मालूम नहीं, अब सुननी है ना, जैसे शासन आता है वो ही बताता था। और अब देखो इतना स्लाइडिंग हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो अभी क्या स्थिति है आपके गांव की? देखो गांव की इस टाइम में तो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि इस टाइम पर भी खतरा है। अभी तो चलो बारिश लगी हुई है, जब ये जो स्लाइडिंग हो रही है ना, जब बारिश हट जाती है उसके बाद मतलब होती है।
के बाद और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए गांव में ये खेत खलिहान है जो अब फसलें जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। जब घर परिवार ही यहाँ पर जो है परिवार बेघर हो गए हैं, घर जो है जमींदोज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हम आपको और क्या तस्वीर दिखाएं। जहां भी जा रहे हैं रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं और अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी हम लोग कह रहे हैं अलार्मिंग सिचुएशन है। जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर दिखने भी चाहिए। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं और हमें उस वक्त ये कहा गया था कि जब इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो अलार्म बजेगा, लेकिन वो अलार्म बजा ही नहीं। तो आखिरकार वो अलार्म यहां पर स्थापित किया ही क्यों गया था, ये बहुत बड़ा सवाल हम अभी यहां पर छोड़े चले जा रहे हैं। ज्वाली के न्यांगल से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। राजस्थान के चुनावी समर में एआरसीपी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। सवाई माधोपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एआरसीपी के मुद्दे पर खुली चुनौती दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुली चुनौती देता हूं कि वो और उनका कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी एआरसीपी योजना को लेकर राजस्थान में जिस भी जगह जाए वहां खुले मंच पर उनसे खुलकर डिबेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एआरसीपी को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी टीम एआरसीपी पर लगातार झूठ बोल रही है। एक फर्जी चुनावी मुद्दा तैयार किया जा रहा है। प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि 2500 एमसीएम पानी जो मिलने वाला है, जिससे सिंचाई भी होगी, जिससे पेयजल की सुरक्षा और गारंटी अगले 30-40 साल तक की इस पूरे 13 जिलों को मिलेगी। लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की गारंटी मिलेगी। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 एमसीएम पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Viewers,